Hi dear students, this is Dr. Mamta Java, your microbiology faculty at PW Meded. So guys, the INICET November 23 exam is already over and we have discussed the questions of all the 19 subjects on the YouTube channel of PW Meded. So the idea of this video module today is not to discuss the questions once again, but to have an insight into the pattern of the paper and hence the way forward. So guys, the first and foremost thing I would want to tell over here is we are often told to forget the past, not remember it, but remember the lesson which it taught us. But as far as our exams are concerned, especially this exam, INICET exam or NEET PG or FMG exam, it's extremely important to not forget the past, meaning the questions which have been asked in the past, especially in the previous 3 to 4 years, not just the questions but the topics. So that is extremely important and that we are going to see in the upcoming slides, as I would want to comment on each and every question which was asked this year also. All of these questions were on topics which already have been asked in the previous years by INICET. So guys, the very first question which I have put up over here is a question on HIV receptor. Obviously this is an extremely important topic. The four most important topics I always tell students to do as far as infectious diseases are concerned are HIV and TB, जिनको करे बिना तो मैं बोलूँगी पेपर देने नहीं जाना चाहिए, because these are, needless to say, extremely important and there is so much of overlap amongst microbiology, medicine, pharmacology, pediatrics. ठीक है, so the question which was asked on HIV was on its receptor, and this is something which is very routinely taught, and you have to know in and out of this virus, human immunodeficiency virus. And this very exam, this November INICET exam, had maximum questions on viruses from microbiology. ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन था. दिस इज एन extremely important topic. Everything about HIV you should be knowing. Then we had a question on HPV vaccine antigen. This again is a repeat question. ठीक है, तो luckily this time in microbiology there were no bouncers. Now I have observed one pattern regarding INICET. They have some kind of favoritism or what to say, partiality or selectivity towards some topics. Like few years back they were asking questions more on parasitology, especially on strongyloids, which is a very unique kind of a helminth. You all know it is the only helminth in the entire helminthology which is ovoviviparous, which shows parthenogenesis. And in the year 2018, if I remember correctly, the AIMS people, I mean that was before INICET exam was devised, the AIMS people had a video based question also on the motile larva. So basically AIMS has got the knack of asking questions on those kind of microorganisms which have got some unique features which are different from the rest, as we're going to see regarding some bacteria also in the upcoming slides. So guys, ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है HPV. तो बेसिकली ये ऐसे वायरसेस है ना जो रूटीनली आप पढ़ते हो, ये नीट पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है. देन हर्पीस वायरस पे क्वेश्चन था. आई मीन ये question was on the congenital infections. Herpes viruses, obviously, these are also pretty important viruses. In fact, viruses, virology और mycology तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि उतनी ज़्यादा वास्ट नहीं है. तो इस पर कोशिश करो कि आप कुछ भी मत छोड़ो, बिकॉज अगर आपने कोई वायरस या फंगस छोड़ दिया और उसी में से क्वेश्चन आ गया, देन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट. बैक्टीरियोलॉजी, आई अग्री, इज प्रिटी वास्ट, बट देन अगेन जो पिछले 3-4 सालों में जो बैक्टीरिया यूजुअली पूछे जा रहे हैं, अगर आप वो भी कर लेते हो देन यू आर गुड टू गो. ठीक है, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, herpes viruses. Then again, dengue virus. Arboviruses overall are extremely important. Dengue, chikungunya, जिका वायरस. तो ऑल ऑफ दीज वायरसेस ये ऐसे हैं जिनके हम आउटब्रेक सुनते रहते हैं. एंड डेंगी के अभी इस बार कितने सारे केसेस ऑलरेडी आ भी चुके हैं. एंड आई वाज टोल्ड दैट दिस एग्जाम हैड गॉट मोर देन वन क्वेश्चन ऑन डेंगी, बट ऑल आई गॉट फ्रॉम द रिकॉल वाज this one question on the diagnosis. Okay, I've discussed this in detail on the routine in the routine lectures on the PW Merit app. So the screenshots which you are seeing on the screen right now, they are from the video lectures. This is the name of the video over here, and at the bottom
दिस आई हैव जस्ट मेंशन कि भाई एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है. सो दिस अगेन अ प्रेटी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके बाद देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन यू नो RT-PCR. ये तो आई थिंक ये मैंने ऑलमोस्ट एवरी वीडियो मॉड्यूल ऑन RNA वायरसेस कमेंट किया है कि RT-PCR का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR. प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद रियल टाइम PCR. देयर इज नो शॉर्ट फॉर्म ऑफ रियल टाइम. Real time is a pattern or a format of PCR which has got a very less turnaround time, etc etc. तो ये भी इतना सिंपल था. This was not a bouncer at all and you are expected to know this, ठीक है. तो ये अगेन बहुत एक्सपेक्टेड सी चीज़ थी. नो बिग डील अबाउट इट. देन वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स HBV सेरोलॉजी. अब इसमें देखो ये ना बहुत बार पूछा जा चुका है और इसमें नया और क्या ही पूछ लेंगे. अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर हैं जो मैंने डिटेल में विस्तार पूर्वक डिस्कस किए हैं, बिकॉज एज एन एजुकेटर आई नो कि भाई ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना HBV की सेरोलॉजी. अगर आपको आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो उनको कैसे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन देने दो, आप इसका ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकाल ही लोगे. सो दिस जैसे मैंने रिकॉल वीडियो में भी इसमें डिस्कस करा है, दे आई थिंक द IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट HBE antigen was positive and they asked whether it was an acute infection or chronic infection. तो ऑप्शंस रूल आउट करना भी काफ़ी सिंपल रहा था इस क्वेश्चन में. तो इस ऐसे क्वेश्चन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अगेन एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट. तो अभी तक हमने कितने देख लिए? 6 क्वेश्चंस देख लिए. तो 6 क्वेश्चंस वर ऑन वायरसेस. जैसे मैंने शुरू में भी बोला कि मैक्सिमम क्वेश्चंस वर ऑन वायरसेस दिस ईयर. देन अगेन आते हैं माइकोलॉजी पर. As I said previously also, mycology is the shortest of all the topics in clinical microbiology. So इसमें please don't leave any topic. और कुछ नया पूछेंगे नहीं. वो कुछ अजीब सा वायरस, कुछ अजीब सा फंगस पूछ लिया तो वो अलग बात है, but then it's gonna be new for everybody. It's gonna be a bouncer, so don't worry about such bouncer questions, ठीक है. तो क्वेश्चन अब इसमें क्या आया था? Question was on Candida glabrata and Candida grussi. Again, this has been discussed in the routine video lectures as well. Candida and crypto को मैं बोलती हूँ the 2 C's of mycology. Again, जिसके बिना पेपर देने जाना नहीं चाहिए. These are very very important. I always say this to my students कि rare questions are rarely asked. So कोशिश करो कि जो सबको आता है ना वो आपको भी आए. Candida, crypto, TB, HIV, आर्बो वायरसेस वगैरह वगैरह, ये सारे इतने इतने कॉमन टॉपिक्स हैं और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कॉमन इन्फेक्शंस हैं, ठीक है. तो जो इन्फेक्शंस रूटीनली होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछना भी बनता है, ठीक है. देन वी हैड अ क्वेश्चन ऑन म्यूकरमाइकोसिस. दिस वाज एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन एंड ये मिड ईयर INICT में भी आ चुका है. इफ आई रिमेंबर करेक्टली मिड ईयर INICT में देवर 2 क्वेश्चंस. एक एस्परगिलस की इमेज पे था और एक अगेन म्यूकर की इमेज पे था. तो जैसे मैंने एज आई सेड इन द आउटसेट ऑफ दिस वीडियो मॉड्यूल, द प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट द क्वेश्चंस बट द टॉपिक्स. सो एक टॉपिक, आई मीन वट एवर टॉपिक इट इज़, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर यही टॉपिक है तो आपको पूरा पता होना चाहिए म्यूकरमाइकोसिस के बारे में. इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ फंगस इट इज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है ना. देन आगे बढ़ते हैं. देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन राइनोस्पोरिडियोसिस. इस पे पिछले कई सालों से क्वेश्चन आ रहा है और स्टार्ट कैसे हुआ था? Previously it was a fungus, so routinely we study this organism Rhinosporidium seaberry in mycology, but its classification has been changed and यही पिछले I think 3-4 साल पहले पहली बार पहली बार जो नया क्वेश्चन इस पे पूछा गया वो ये था कि what kind of an organism it is. It is now a Mesomyceta zone. और ये छोटा सा टीनी टाइनी सा टॉपिक है तो ऐसे टॉपिक्स को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए. तो अगेन दिस वाज अ वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. I was actually surprised this year to see कि there were no surprises luckily. तो अब नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियोलॉजी पे. लिस्टीरिया और डिप्थीरिया गाइज मेरे 2 मोस्ट फेवरेट बैक्टीरिया हैं इन दी एंटायर क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी. और ये मैं आई से दिस विद अ लॉट ऑफ व्हाट टू से प्राइड, सो टू से, ड्यूरिंग माई लेक्चर्स ऑल्सो, बिकॉज ये ड्यूरिंग माई अंडर ग्रेजुएट डेज ऑल्सो हैव बिन माई फेवरेट ऑर्गेनिजम्स. बिकॉज ये सारे बैक्टीरिया से अगर आप इनको कंपेयर करो ये बहुत ही यूनिक है. दीज आर प्रिटी यूनिक ऑर्गेनिजम्स, डिप्थीरिया और एक लिस्टीरिया. और इस पेपर में दोनों से ही क्वेश्चन था. सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस बिकॉज ये कहीं ना कहीं ये आ ही जाता है.
ये नीट पीजी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के प्रॉफ एग्जाम में भी बहुत आता है. ऑल राइट, एंड आई यूजली टेल अ स्टोरी अबाउट द टॉक्सिन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया विच इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग, विच ऑल्सो इज द रिमाइंडर फॉर अस टू कि भाई हमारे जो टॉक्सिन्स हैं पूरी माइक्रोबायोलॉजी में, एक तो एंडोटॉक्सिन है present in the outer membrane of gram negative organism, plus there are so many exotoxins which we study. तो ये again बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं. अ वैरायटी ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स वी स्टडी, इकोलाई के टॉक्सिन्स, विब्रियो कॉलेरे के टॉक्सिन हो गए. देन क्लॉस्ट्रीडियम में तो जो 4 ऑर्गेनिजम्स हमें पढ़ने होते हैं उनका सारा डिजीज ही टॉक्सिन मीडिएटेड है. तो ये अगेन आई वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी क्वेश्चन ऑन दिस. तो ये आई मीन क्वेश्चन इस पे आया भी था इसके टॉक्सिन के ऊपर. तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड टॉपिक. टॉक्सिन्स आपको सारे अच्छे से आने चाहिए कि कौन सा टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन सा टॉक्सिन CAMP इंक्रीज करता है, कौन सा टॉक्सिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, वगैरह वगैरह. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11वें क्वेश्चन पर, लिस्टीरिया पर. अगेन मेरा मोस्ट फेवरेट ये है पूरी बैक्टीरियोलॉजी में, सेकंड मोस्ट फेवरेट बैक्टीरियम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया. अब लिस्टीरिया बहुत यूनिक है बिकॉज एज आई सेड कि INICET का जो एग्जाम होता है ना, जो एम्स वाले सेटअप करते हैं, दे हैव अ नैक ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस ऑन ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रिटी यूनिक, एंड लिस्टीरिया एंड कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया परफेक्टली फिट द बिल ऑफ दीज क्राइटेरिया ऑफ यूनिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, लिस्टीरिया जैसे आप पढ़ोगे भी इसके बारे में, साइकोट्रोपिक होता है. इट जम्प्स फ्रॉम सेल टू सेल बाय फॉर्मेशन ऑफ actin filaments literally like a slingshot, and it's a foodborne pathogen. और ये हर तरह काफ़ी प्रकार के इन्फेक्शंस कर सकता है और किसी को नहीं बख्शता. सारी एज ग्रुप्स को ये इन्वॉल्व कर सकता है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली जो हम एंटीबायोटिक्स ब्लेटेंटली अनफॉर्चुनेटली दीज डेज देखते हैं कि प्रिस्क्राइब हो रही हैं, सेफेलोस्पोरिन्स, दे फेल इन केस ऑफ लिस्टीरिया. ठीक है, तो उस हिसाब से ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया. इसीलिए मे बी दैट्स वाई एम्स पीपल डिसाइडेड टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस. ठीक है, तो दिस अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक. उसके बाद देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन टिक बॉर्न डिजीजेस. रिकेट्सिया पे इस बार 2 क्वेश्चन आए थे, कभी आगे भी आएगा स्क्रब टाइफस पर. रिकेट्सियल इन्फेक्शंस अगेन नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं कि भाई मतलब ये अगेन ऐसा टॉपिक है जो आपको करके ही जाना है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक. ठीक है, सो देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सी डिफिसाइल का ट्रीटमेंट. अगेन अ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड टॉपिक. ये काइंड ऑफ ओवरलैपिंग टॉपिक हो गया बिटवीन माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी. अगेन कुछ अजीब सा ऑर्गेनिज्म नहीं है. सी डिफिसाइल के इस बार अगर ट्रीटमेंट पूछा है तो अगली बार एंटीबायोटिक पूछ सकते हैं, या इसके टॉक्सिन्स के बारे में पूछ लेंगे, या डायग्नोसिस. तो एज आई हैव बीन सेइंग ऑल अलोंग कि अगर किसी एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन आया उसके डायग्नोसिस पर, तो आप वो पूरा टॉपिक पढ़िए, नॉट जस्ट द डायग्नोसिस पार्ट बट एवरीथिंग अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, देन एज आई जस्ट सेड अ फ्यू मिनट्स बैक, रिकेट्सिया पे 2 क्वेश्चन मुझे मिले हैं. 2 स्क्रब टाइफस के ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन था, एंड स्क्रब टाइफस का पूछा जाना अगेन इज नॉट अ सरप्राइज एट ऑल. बिफोर INICET एग्जाम वॉज डिवाइस्ड, एम्स वाले इस पे भी क्वेश्चन पूछते थे. स्क्रब टाइफस पे क्वेश्चन PGI में भी कितनी बार आ चुका है, एंड इन इंडिया दिस इज द मोस्ट कॉमन रिकेट्सियल इन्फेक्शन, तो इसको तो करके जाना बनता ही है. ठीक है ना, तो ये 14th क्वेश्चन हो गया. अब आते हैं हम इम्यूनोलॉजी पर. अगेन आई ऑलवेज से कि अगर आपकी इम्यूनोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, आपने इम्यूनोलॉजी मास्टर कर दी, तो आपको आगे अलग अलग स्पेशलिटीज़ में, चाहे आपके कोई भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आप ले लीजिए, उसमें आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा चीज़ें समझने के लिए. ठीक है, तो एक मेडिको को एक साउंड नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ इम्यूनोलॉजी, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू अटेम्प्ट इन माय रूटीन लेक्चर्स ऑन द PW मेडेट ऐप. प्लीज़ हैव अ लुक. तो हमारे पास इस बार क्वेश्चन आया था ऑन somatic hypermutation and class switching. The entire question properly was not recalled, but I have discussed these important concepts in detail in the routine lectures on the PW Medet app. You can find them in the immunology module. ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन रहा इम्यूनोलॉजी से इस साल. एंड क्वेश्चन ऑन सुपर एंटीजन अगेन, ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी पूछा जा चुका है. नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो गाइज, ये 16 क्वेश्चंस थी. 16 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने रिकॉल वीडियो में डिस्कस करे हैं. इट वाज अ क्विक रिकॉल, एंड
hopefully very soon we are going to come up with a detailed recall video of these questions also in the very near future. तो ये 16 questions तो ऐसे हैं जो मुझे students ने दिए थे. इसके अलावा after I was done with my recall, I got some info about few more topics. Like there was probably a question on Vibrio cholerae. Again, कितना expected है, cholera तो आना ही चाहिए. And probably it was on the virulence factors, one of the virulence factors. I'm not really sure कि क्या था. Then there was probably an image based question on Naegleria. कुछ मेनिंजाइटिस वगैरह की हिस्ट्री दे रखी थी. अगेन ये मुझे ठीक से इसकी पूरा क्वेश्चन की स्टेम वगैरह नहीं मिल पाई थी उस टाइम तक. ठीक है, आई ट्राई टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज missing links also of this exam, and hopefully I'll cover them in the detailed recall video in the coming time. So this was about this was about the pattern of question. And pattern क्या रहा है, previous year पिछले 3 से 4 साल में जो questions पूछे गए हैं, जो topics पूछे गए हैं, वही इस बार भी आए थे. This year luckily there was नो बाउंसर. आई मीन नवंबर वाले सेशन में कोई बाउंसर नहीं था. तो टेक होम मैसेज क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे मैंने बोला वायरोलॉजी से आए हैं. डू योर वायरोलॉजी एंड माइकोलॉजी वेरी वेरी थरली, बिकॉज छोटे हैं एंड काफ़ी डुएबल हैं. बैक्टीरियोलॉजी आई अग्री थोड़ी वास्ट है, बट ट्राई नॉट टू लीव एनी बैक्टीरियम, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक छोड़ के जाते हो, एज आई सेड पहले भी, और उसमें से क्वेश्चन आता है फिर वो नहीं आ पाएगा तो फिर बुरा लगेगा. और मान लो अगर बहुत ईजी हुआ क्वेश्चन तो और ज़्यादा बुरा लगेगा कि सबको आता होगा फिर हमें नहीं आएगा. और जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं ना वो तो आने ही चाहिए. ठीक है, रेयर क्वेश्चंस एज आई सेड बिफोर ऑल्सो आर रेयरली आस्क्ड, तो उनके पीछे स्ट्रेस मत लो. द टेक होम मैसेजेस, देखो अब तो एग्जाम हो चुका है, कुछ लोगों का अच्छा हुआ होगा, कुछ लोगों का नॉट सो भी अच्छा हुआ होगा. अब तो रिजल्ट्स भी आ चुके हैं. माई मैसेज टू यू एज एन एजुकेटर वुड बी, अब जो हो गया. इवन इफ फॉर सम रीजन यू वर नॉट एबल टू फेयर वेल इन दिस एग्जाम, दैट इज कम्प्लीटली फाइन. मे बी इट वॉज नॉट योर डे. नाउ द आइडिया इज, अगर तो एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो हमें एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि हमने कहाँ गलतियाँ की, कौन से टॉपिक्स हमारे वीक थे, एंड कहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो रही थी. सो मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज टॉपिक्स जो हमें ठीक से याद नहीं आए और उन पर फोकस करो. सो यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट सर्टन चेंजेस इन योर प्रिपरेशन. ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड वांट टू हाईलाइट ओवर हियर इज, क्या किस चेंज की बारे में मैं बात कर रही हूँ. पहली बात तो जस्ट गेट ओवर द एग्जाम एंड गेट गोइंग. अभी द नेक्स्ट एग्जाम इज गोइंग टू बी नीट पीजी, मोस्ट लाइकली इन द मंथ ऑफ मार्च. ठीक है, तो ये जो सारे टॉपिक्स हमने INI-CT के देखे, दे आर ऑल्सो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट फॉर नीट पीजी एग्जाम ऑल्सो. तो इनको तो अच्छे से अभी साथ के साथ कर ही लो. ठीक है, एंड नॉट जस्ट द क्वेश्चन बट द एंटायर टॉपिक्स. देखो PYQs तो मैंने बोल दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली PYTs बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. अब करना क्या है, एक बार करने से बात नहीं बनती है. यू हैव टू कंसिस्टेंटली रिवाइज. द की टू सक्सेस इज रिविजन. बार बार पढ़ो, तब तक रिवाइज करो जब तक आपको अच्छे से वो याद नहीं हो जाए. बट देन अगेन देर आर सम टॉपिक्स ऑब्वियसली जो हम जितना मर्जी बार पढ़ लें, हमें एग्जाम अगर कल है तो आज उसको एक बार देख के जाना ही होता है. तो मेक अ लिस्ट ऑफ योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड वीक टॉपिक्स. आप बार बार जैसे जैसे रिवाइज करोगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी. तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अच्छा यार, अगर ये इस टॉपिक पे आ गया क्वेश्चन तो ये तो मैं कर ही लूँगा या कर ही लूँगी, ये मुझे याद आ जाएगा. लेकिन ये वाला टॉपिक, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल लाइक इन माई केस, ड्यूरिंग माई UG डेज मुझे पीडियाट्रिक माइलस्टोन्स काफ़ी डिफिकल्ट लगते थे. और अगर कल एग्जाम है पीड्स का, चाहे क्लिनिक्स है या फिर थ्योरी पेपर है, तो मुझे एक दिन पहले भी उसको देखना ही पड़ता था, तो मुझे वो याद नहीं होता था. लाइक वाइज वी ऑल नो आवर वीकनेसेस. तो अपने आप के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन करो, एक एनालिसिस करो कि कौन सी चीज़ आपको ठीक से याद नहीं आती है. उसको एक पेपर पर लिखो और उसको बार बार रिवाइज करो. ट्रस्ट यू मी, अगर आपने उसको बार बार रिवाइज कर लिया तो एग्जाम वाले दिन भी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे. सो रिविजन इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो जस्ट कीप काम एंड स्टार्ट रिवाइजिंग.
और हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड टेस्ट देनी चाहिए और ग्रैंड टेस्ट के स्कोर की हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, कोई स्ट्रेस नहीं पालना है। तो ग्रैंड टेस्ट को देने का फंडा, उसका एम क्या होना चाहिए कि आप एक जगह 3 घंटे बैठ पाते हो, एग्ज़ाम का वो पूरा सिनेरियो सिमुलेट कर पाते हो। बिकॉज जीटी में रैंडमली क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो अगर पहला क्वेश्चन मान लो ईएनटी का है, दूसरा माइक्रो का आ गया, फिर तीसरा एनाटमी का आ गया, तो ब्रेन को वैसे ही कंडीशन करना है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, कि मुझे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जीटीज को आपने कंसिडर करना है एज एन नॉट एज एन, अपने आप को असेस नहीं करना, जज नहीं करना है, कोई जजमेंट नहीं है यहाँ पे आपके लिए, बस ये एक प्रैक्टिस की तरह होनी चाहिए। और जीटीज की मान लो आपने आज जीटी दिया, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दैट जीटी इन द नेक्स्ट 1 to 2 days मैक्स, उसको ख़त्म कर डालो। अगर आज आपने जीटी दिया और उसको आपने एक हफ्ते तक फिर नहीं किया, तो मेरे हिसाब से फिर वो वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। तो आज आप जीटी दे के आए, ठीक है, आज ही एनालाइज करो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कौन से टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूजन हुई, कौन से टॉपिक्स बिल्कुल भी याद नहीं आए, उनको मार्क कर लो अपने नोट्स पे, उनको रिवाइज करो। तो जीटीज क्या होंगे, जीटीज मेरे हिसाब से एक हमारे लिए ना आई ओपनर होते हैं कि कौन सा टॉपिक पे हम फॉल्टर करते हैं, कौन से टॉपिक में हमें कन्फ्यूजन होती है, और अगर किसी टॉपिक में हमारे को कोई डाउट है तो वी शुड आस्क आवर टीचर्स एंड अबाउट दोज डाउट्स एंड जस्ट गेट देम क्लैरिफाइड। एवरी मिस्टेक इन एवरी टेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव प्रोवाइडेड यू लर्न फ्रॉम इट। मिस्टेक्स आर द बिगेस्ट टीचर्स, ठीक है ना। तो जीटीज को हमें ऐसे ही लेना है, जीटी में हमारा जो क्वेश्चन गलत हुआ हमें उसको फिर एनालाइज करना है, उस टॉपिक को रिवाइज करना है। और जीटीज देकर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मान लो ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितने अटेम्प्ट करके आए। अगर तो पेपर बहुत ईजी है तो एक हाई, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एक रिस्क थोड़ा सा ले लेना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया, क्योंकि अंडर अटेम्प्ट करना यूजुअली थोड़ा हमारे थोड़ा मतलब दैट इज़ नॉट गोइंग टू रियली हेल्प अस अंडर अटेम्प्ट करना। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि ओवर अटेम्प्ट करके आओ, बट देन अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि वो पेपर कैसा है, माहौल कैसा है, ठीक है ना। तो जीटी का एक और यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ ये भी होता है कि आपको ये समझ में आ जाता है कि अच्छा एक प्रैक्टिस हो गई है मुझे, अगर मैंने 10 जीटीज दे दिए तो कितने अटेम्प्ट करने पर मेरा स्कोर कितना आ रहा है, और मेन एग्जाम में मुझे रफली कितने करके आने चाहिए, ठीक है। नाउ सो बेसिकली क्या क्या मैंने बता दिया, हमने देख लिया कि हमने पीवाई क्यूज़ करने हैं, पीवाईटीज़ करने हैं, हमें बार बार रिवाइज करना है, हमें जीटीज देने हैं, हमें टीचर से अपने डाउट्स क्लैरिफाई करवाने हैं, और हमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। रिमेंबर, सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीजेस कॉर्टिकल एक्टिविटी। तो जितना काम और कंपोस्ट होकर पढ़ोगे उतना ही आपको डी डे पर मेन एग्जाम वाले दिन याद आएगा। काम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम गाइस, तो उसको उसी तरह से लो, पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत के साथ पढ़ो। और कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपके रिलेटिव्स या आपके आपके फ्रेंड्स जो प्रॉबेबली प्रोफेशनली सेटल हो चुके हैं, किसी से अपनी कंपैरिजन मत करो, बस आपका कंपटीशन आपके साथ ही है। अपने आप से ईमानदारी रखो, रोज़ एक समय निर्धारित कर लो कि आपको पढ़ना है। कभी थक जाते हो, एंड आई मीन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं बार बार पढ़ के। तो कभी ऐसे लगे कि सैचुरेट हो रहे हो तो रिलैक्स, टेक अ चिल पिल, एक ब्रेक ले लो, कोई मूवी देख लो, और गो टू योर फेवरेट कॉफ़ी प्लेस, वहाँ पे कॉफ़ी पी लो, या तुम्हें जो भी अच्छा लगता है वो करो। क्योंकि ये ब्रेक लेना बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट बर्नआउट एंड टू प्रिवेंट मोनोटनी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक हम अपने फ़ोन को रिचार्ज करते हैं, हमें अपने आप को भी रिचार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम सब वो डिज़र्व करते हैं। तो ये हमेशा याद रखो, आपका कंपटीशन, आपकी कंपैरिजन बस आपके साथ ही होनी चाहिए, ठीक है। एंड lastly, before I sign off in this video, I would want to say few important things. मेहनत पूरी शिद्दत से करो, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एक डिसिप्लिन लेके आओ अपनी लाइफ में, अगर अभी तक नहीं है, एक रूटीन बनाने की कोशिश करो, एक टाइम टेबल को फॉलो करो। ऑलराइट, आई ऑलवेज से कि डिसिप्लिन इज वे मोर इम्पॉर्टेंट देन मोटिवेशन। पेशेंस रखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है, उस चीज़ से अपने आप को जज मत करो। सबका टाइम आता है, एंड आई एम श्योर आप सबका भी आएगा।
एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको बहुत जल्दी सबकी मेहनत का फल मिल जाए. सो ऑन दैट नोट आई would sign off, and I wish you all the best for everything in life and not just exams. Thank you.